Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 31 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from CAT 22 slot 1 paper and the set says, given below is the schematic map of the metro lines in a city with rectangles denoting terminal station example A, diamonds denoting junction station example R and small filled up circle denoting other stations. Each train runs either in the east-west or north-south direction but not both. All trains stop for 2 minutes at each of the junction station on the way and for 1 minute at each of the other station. It takes 2 minutes to reach the next station for trains going in east-west direction and 3 minutes to reach the next station for trains going in north-south direction. From each terminal station, the first train starts at 6 a.m. The last train leaves the terminal station at midnight. Otherwise, during the service hour, there are metro service every 15 minutes in the north-south lines and every 10 minutes in the east-west line. A train must rest for at least 15 minutes after completing a trip at the terminal station before it can undertake the next trip in the reverse direction. All questions are related to the metro service only. Assume that if someone reaches the station exactly at the time of a train is supposed to leave, he or she can catch that train. एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, if Hari is ready to board a train at 8:05 a.m. from station M, then when is the earliest that he can reach the station N? If Priya is ready to board a train at 10:25 a.m. from station T, then when is the earliest that she can reach the station S? Question 3, Haripriya is expected to reach the station S late. What is the latest time by which she must be ready to board the station S? If she must reach station B before 1 a.m. via station R. Question 4, what is the minimum number of trains that are required to provide the service on the AB considering both north and south direction? Question number 5, what is the minimum number of trains that are required to provide the service in the city? एक रूटिंग नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड सेट जहाँ पे अपने को एक पर्टिकुलर सिटी का एक रूट का दे दिया है जहाँ पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है. इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें कि जंक्शंस, अदर स्टेशंस और टर्मिनल स्टेशंस की बात हो रही है. ठीक है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो ऐसे क्वेश्चन जनरली क्या कर सकते हैं, मतलब आइडियली यू आर सपोज टू स्टार्ट विद दी क्वेश्चन पार्ट, जहाँ क्वेश्चन उसके हिसाब से चीज़ों को लिखना शुरू करो. ठीक है, या एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एम और एन का रूट का एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि एम से एन जाने में कितना टाइम लगेगा. बिकॉज मेरे को दिख रहा है एम से एन भी उतना ही टाइम लग रहा है, एन से एम भी उतना टाइम लग रहा है, पी और क्यू और पी से भी. तो मे बी आई इफ आई इन्वेस्ट सम टाइम इन फाइंडिंग एम और एन और ए और बी, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा आगे जाके. बिकॉज एक और एक निकाल लिया तो उससे मेरे को 4 रूट्स के एक एस्टिमेटेड टाइम निकल चुका होगा. बट फॉर दैट मेरे को जो पैसेज में लिखा हुआ वो चीज़ों को थोड़ा सा लिखना जरूरी है. चलो पहले पैसेज में से चीज़ों को निकाल लेते हैं. ईस्ट ट्रेन रन इधर इधर इन दी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों में नहीं कर रही होती. ऑल ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट एट जंक्शन. जंक्शन पे 2 मिनट लेता है. ठीक है, ऑल ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट एट ईच जंक्शन ऑन द वे एंड फॉर 1 मिनट ऑफ अदर स्टेशन. अदर स्टेशन पे ये 1 मिनट लेते हैं. ठीक है, इट टेक्स 2 मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड 3 मिनट टू रीच द स्टेशन इन नेक्स्ट टू ट्रेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, अगर ये ईस्ट वेस्ट में जा रहा है तो इसको 2 मिनट लगता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, यानी कि एम से इस पॉइंट पे जाने के लिए 2 मिनट लगने वाला है. एंड दिस इज 3 मिनट व्हेन ट्रेन ट्रेवल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक, यानी कि ए से इधर आने के लिए 3 मिनट लगने वाला है. ठीक है, और पढ़ लेते हैं. फॉर ईच टर्मिनल स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 a.m. अच्छा, जो सबसे पहली ट्रेन है वो 6 बजे शुरू हो रही है 6 a.m. पे. For each termination, the first train starts at 6 a.m. The last train leaves the terminal station at midnight. ठीक है, रात को 12 बजे यहाँ पे स्टेशन पे सबसे लास्ट ट्रेन आपकी मूव कर रही होती है. इसके बाद कोई भी ट्रेन आपकी नहीं चलने वाली है. ठीक, otherwise during the service hour there are metro services every 15 minutes in the north south direction and every 10 minutes in the east west direction. अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि भाई हर 15 मिनट पे आपको ट्रेन मिलेगी फॉर नॉर्थ साउथ एंड 10 मिनट की मिलेगी फॉर एवरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ठीक, मतलब 6 बजे के बाद 6:15, 6:30, 6:45 एंड सो ऑन. ऐसे ही ईस्ट वेस्ट की बात करें तो 6, 6:10 एंड ऐसा कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिख दी. ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास है. चलो एक ना रफ आइडिया ले लेते हैं कि मान लो एम पे 6 बजे का ट्रेन निकली तो एन पे कितने बजे पहुंचेगी. तो मेरे को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि अच्छा 6 बजे वाले इतना टाइम लग रहा है, फिर 6:10 वाला कितना लगेगा. तो दैट इन अ वे बिकम्स ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट. तो एम से 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस ये 3 स्टेशन यानी कि 11 मिनट यहाँ लगने वाले हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ निकाल दें.
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे 10, यानी कि 20 + 9, यानी कि यहाँ पे 29 मिनट लगने वाले हैं 9 स्टेशन के, और इनके बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 20 मिनट्स का हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें 2 4 6 8 10 12, 12 + 5 स्टेशन, यानी कि यहाँ पे कितना लगने वाला है 17 मिनट। ठीक है, मतलब M से N जाने के लिए अपने को कितना टाइम लगने पड़ रहा है पूरा, अगर बात करें तो M से N जाने के लिए 11 2 13, क्योंकि R पे भी 2 मिनट ट्रेन रुकेगी, 11 2 13, 13 + 29 कितना होता है, 13 + 29 होता है आपका, 13 + 30 होता है 43 और 42। ठीक है, 42 है ना, बेसिकली 11 और यहाँ पे 2 13 ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 2 मिनट का यहाँ पे भी वो है जंक्शन का, इसलिए मैंने 13 लिया। तो 13 और 30 होता है 43, और एक कम करेंगे 42, 42 और 2 मिनट्स और ऐड करेंगे तो 44, 44 और 7 41, 51 और 10 61, यानी कि M से N जाने के लिए अपने को कितना लग रहा है 61 मिनट लगने वाले। ठीक, यानी कि लेट्स से कोई ट्रेन है जो कि 6 बजे शुरू हुई है पॉइंट M से, वो N पे कितने बजे पहुंचेगी 6 बज के मतलब 61 मिनट बाद, यानी कि 7 बज के 1 मिनट पे, एंड वो 7 बज के 16 मिनट पे, यानी कि 15 मिनट के बाद दोबारा से तैयार हो जाएगी वापस जाने के लिए, लेकिन वो निकलेगी कितने बजे 7 बज के 20 मिनट पे। क्यों? क्योंकि ईस्ट वेस्ट वाले पे हर 10 मिनट पे ट्रेन मिलती है। ठीक है, दिस इज आई कैलकुलेटेड फॉर M से N। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट वाले का एक पर्टिकुलर पाथ पिक कर लिया। अब ये ईस्ट वेस्ट वाला हर पाथ पे ही ऐसा होने वाला है। इसी तरीके से नॉर्थ साउथ के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ का रूट अपने पास क्या दिया हुआ है, A से B वाला रूट दिया हुआ है ना, तो A से B में कितना लगेगा A से B में कितना लगता है 3 मिनट लगता है ना यहाँ पे। ठीक है, 3 यानी कि 3 6 9, 9 + 2 यानी कि 11। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 6 9 12, 12 + 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते 3 6 9, यहाँ से भी 11, यानी कि कितना टाइम लग रहा है टोटल 11 2 13, 13 और 15, 13 और 15 होता है 18 और 28 और 2 30, 30 के बाद कितना लगा 41, यानी कि 41, यानी कि A से B जाने में 41 मिनट लग रहे हैं। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 2 13, 13 13 और 15 28, 28 2 30, 30 और 11 41, यानी कि 41 मिनट लगने वाले हैं। यानी कि कोई ट्रेन अगर 6 बजे शुरू हुई है A से, तो वो 6:41 पे पहुंच जाएगी पॉइंट B पे। ठीक, और 15 मिनट के बाद यानी कि 6:56 पे तैयार हो जाएगी टू रीस्टार्ट फ्रॉम B टू A, और वो लेकिन शुरू कितने बजे होगी 7 बजे। क्यों? क्योंकि हर मिनट पे ट्रेन चलती है। ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर आवर में अगर नॉर्थ साउथ में बोले तो वो एक ही ट्रेन है जो कि 6 बजे चालू हो रही है, और फिर वो वही ट्रेन 7 बजे वापस से जाने वाली है। ठीक, अब ये मेहनत मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कर ली है। अब मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन पे, बिकॉज यही एक था जो थोड़ा मैं रफ वर्क के नाम पे कर सकता था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड, एक कलर कोड ले लेते हैं। ठीक, इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड एट ट्रेन एट 8:05 AM, हरी वही है जो कि 8:05 पे ट्रेन बोर्ड करना चाह रहा है फ्रॉम स्टेशन M, यानी कि यहाँ से, ठीक, इस जगह से 8:05 पे। या ट्रेन तो 8:05 पे शुरू हो नहीं रही है, ट्रेन शुरू होगी 8 बजे, 8:10 पे। ठीक, देन व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम दैट ही कैन रीच द स्टेशन N पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 8 बजे तो भाई साहब को ट्रेन मिलेगी नहीं, जो भी ट्रेन मिलेगी अब 8:10 पे मिलेगी, जो सबसे पहली ट्रेन मिल सकती है 8 बजे 8:05 पे जब वो आ रहा है, तो जो 8:10 पे ट्रेन आएगी वो कितना टाइम लेगी 61 मिनट लेगी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि N जाने के लिए। यानी कि 8:10 वाली जो ट्रेन है वो कितने बजे पहुंचेगी 9:10 और 9:11 पे वहां पे पहुंच जाएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो इन अ वे एकदम सेटर था, जस्ट बिकॉज मैंने कैलकुलेट कर रखा था तो मेरे लिए इन अ वे आसान बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट 10:25 AM, प्रिया जो है रेडी है ट्रेन को बोर्ड करने के लिए 10:25 AM फ्रॉम स्टेशन T, यहाँ से ये 10:25 पे जाना चाह रही है। ठीक है, इस जगह से। अच्छा, ये मैंने रेक्टेंगल में कर लिया जस्ट टू मतलब वो मत समझना कि ये जंक्शन का कुछ है, ये वही है। ठीक है, ये टर्मिनल नहीं है, ये मैं बस हाईलाइट करने के लिए इसको रखा हुआ है। ठीक, अच्छा ऐसा कर लेते हैं। इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट 10:25, यहाँ पे 10:25 पे ये करने वाली है, देन व्हेन इज द अर्लीस्ट टाइम दैट शी कैन रीच स्टेशन एस, एस कितनी जल्दी ये पहुंच सकती है? तो देखो यहाँ पे दो रास्ता है पहुंचने का, एक रास्ता है कि आर होके जाए और एक हो सकता है वी होके जाए, ये दो रास्ते हैं जहाँ से अपन पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि कहाँ से मिल सकता है। अगर ये 10:25 पे आई है तो इसको जो सबसे पहली ट्रेन मिलेगी वही जल्दी पहुंचाएगी, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक, इसको जो पहली ट्रेन बी से मिल सकती है वो कौन सी मिलेगी? यहाँ से बी से ट्रेन कितनी होती है? 15 मिनट पे शुरू होती है। अगर 10 बजे कोई ट्रेन शुरू हुई है तो ये 10:11 पे पहुंचेगी ट्रेन। ठीक, तो ये ट्रेन तो ये पकड़ नहीं पाएगी बिकॉज इसको 10:25 तक लेके जाना है। अगली ट्रेन मिलेगी इसको 10:15 पे, जो कि यहाँ पे 10:26 पे पहुंच जाएगी। ये ट्रेन ये पकड़ सकती है, यानी कि ये ट्रेन यहाँ पे अगर पकड़ेगी 10:25 वाली तो ये चल सकता है। सिमिलरली लेट्स चेक फॉर पी ऑल्सो। अगर पी पे कोई ट्रेन है 11 मिनट के बाद पहुंचेगी ना, तो यहाँ पे कौन सी ट्रेन होनी चाहिए? एक हो सकती है ट्रेन आपकी 10 बजे वाली जो कि 10:11 पे पहुंचाएगी, नहीं 10:20 वाली ट्रेन है जो कि 10:21 पे पहुंचा देगी, सॉरी 10:10 वाली ट्रेन है जो कि 10:21 पे पहुंचा देगी इसको, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगी एंड 10:23 पे डिपार्ट कर जाएगी। तो वो ये पकड़ नहीं सकती क्योंकि ये 10:25 पे पहुंच रही है। ठीक है, इसको जो ट्रेन मिलेगी अगर इस वाले रूट को यूज करती है, ये वाले रूट को, तो इसको जो ट्रेन मिलेगी वो 10:20 वाली मिलेगी विच विल बी हेयर एट 10:31, 11 मिनट, यानी कि 10:31 के बाद 10:33 से ये शुरुआत करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाला जो रूट है ये 10:33 पे शुरू हो रहा है, ये रूट है इसको एकदम यहीं पे मिल जा रहा है, तो हम इस वाले रूट से ही जाना प्रेफर करेंगे बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी लेट जा रहा है और अपने को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम? ठीक है, तो हम क्या रूट लेंगे? यही रूट लेना पसंद करेंगे, यहाँ से होते हुए जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे चलो कैलकुलेट करते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, 10:15 पे ट्रेन आई जो शुरू करी 10:15 पे, जो कि 11 मिनट बाद यहाँ पहुंच गई, यानी कि ये पहुंच गई 10:26 मिनट। ठीक, जो कि 2 मिनट के बाद फिर शुरू करेगी। 2 मिनट बाद शुरू करने के बाद यानी कि 10:28 पे शुरू करके 15 मिनट पे पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ पहुंच गई आर पे पहुंच गई है 10:43 पे। ठीक, 10:26 के बाद 10:28, 2 मिनट का पॉज मतलब हॉल्ट प्लस 15 मिनट, यहाँ पे 10:43 पे ये उतर गई। अब यहाँ पे एक रूट अपने को ट्रेन पकड़ना पड़ेगा जो पीछे से आ रही होगी। 10:43 वाली ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन हो सकती है? एक तो 10:30 वाली ट्रेन हो सकती थी, एक 10:20 वाली ट्रेन हो सकती थी, एक 10:40 वाली ट्रेन हो सकती थी। 10:40 वाली ले नहीं सकते बिकॉज वो 51 पे पहुंचेगी, शायद अगली ट्रेन मिलने का होगा। 10:30 वाली ट्रेन ले सकते हैं क्या? ये एक लग रहा कर सकते हैं बिकॉज 10:30 पे ये जो ट्रेन चली होगी वो 10:41 पे यहाँ पहुंच जाएगी और 2 मिनट का पॉज लेने पर 10:43 पे ये ट्रेन यहाँ पे ये पकड़ सकती है। और अपने को यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि अज्यूम दैट इफ समवन रीचेस अ स्टेशन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ ट्रेन इज सपोज टू लिव, ही और शी कैन कैच दी ट्रेन सेम टाइम। मतलब एम पे कौन सी वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी इसको? एक ऐसी ट्रेन जो कि 10:30 पे शुरू हुई थी और वो 10:30 से 10:41 यहाँ पे पहुंची और 43 से निकलने ही वाली थी, तब तक ये आ गई। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है प्रिया पहुंच गई। अब 10:43 से 29 मिनट्स, यानी कि 43 से 29 का मिनट मतलब 43, 53, 11:03। ठीक है, 11:03 और 43, 53, 11:03, 11:13, यानी कि 11:12 पे यहाँ पे ये पहुँच गई होगी। यानी कि यहाँ पे पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? ये पहुँचेगी 11:12 पे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 11:12, ऑप्शन नंबर सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बस इसमें छोटा सा लॉजिक था जो हमने यहाँ पे पकड़ा था कि भाई हम अगर यहाँ से जाएंगे तो ही हम जल्दी पहुंच पा रहे, यहाँ से जाने के लिए अपने को और टाइम लगेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो, अगर यहाँ से जाते तो आपका ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू, एक बार कलर कोड ले लेते दूसरा। इफ हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट, ठीक है, हरिप्रिया कोई है जो कि स्टेशन लेट पहुंच रही है, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर 1 AM। ठीक है, उसको रात मतलब 1 बजे के पहले पहुंचना है। ठीक है, तो वो कितना लेट शुरू कर सकती है ऐसा? ठीक है, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा बिकॉज अपने को तो एक स्टार्टिंग पॉइंट का एक रिलेटिवली टाइम पता होना चाहिए, तभी उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना लेट हो सकता है और वो 1 बजे तक उसको पहुंचना है। तो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है वो 11:49 AM का। यार ये पंगा नहीं है, ये पंगा क्या 11:49 AM मतलब 11:49 पे तो ट्रेन चल ही नहीं रही है ना। आप देखो तो 6 बजे 6:49 सॉरी 11:49 AM की बात हो रही है। ठीक है, 49 PM ले लिया, 11:49 AM यानी कि सुबह की बात हो रही है। ठीक है, और अपने को पहुंचाना कितना है? 1 AM पे। अगर ये ट्रेन को मैं ट्रैवल कराऊंगा तो ये तो 1 PM ही पहुंचेगा ना, मतलब कितना ही बन जाएगा। मान लो मैं यहाँ से लेके भी जाता हूँ, मेरे को कहाँ से लेके जाना है? एस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से लेके जाना है अपने को। और कहाँ जाना है अपने को? अपने को जाना था पॉइंट बी तक। ठीक, मैं बहुत खींचूंगा तो 1 बजे तक, एक दोपहर के 1 बजे तक पहुंचूंगा, तो यार ये तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो 11:43 PM। चलो लेट्स थिंक फॉर दिस।
क्या 11:43 पे ये पहुंचेगी तो बात बन सकती है? तो ऐसा कोई ट्रेन हो सकता है 11:43 के लिए जो कि पीछे से चल रही हो, यहाँ पे आई हो 11:43 पे इसने पकड़ लिया, तो एक ट्रेन हो सकती है जो कि 10:30 वाली, 11:30 वाली, 11:30 वाली, 11:30 वाली ट्रेन जो कि 11:47 पे यहाँ पहुंची होगी, ठीक है। 11:30 वाली ट्रेन यहाँ पे 11:30 वाली ट्रेन ले लेते जो कि 11:47 पे यहाँ पहुंची होगी, जो कि 11:49 पे फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 49 से जाने के बाद अगले 29 मिनट में ये यहाँ पहुंच जाएगी। अगले 29 मिनट का मतलब 49 से 59, 59 से 12:09, 12:09 से 12:18, यानी कि इस जगह पे कितने बज गए? 12:18 पे ये पहुंची, ठीक है। अब 12:18 पे पीछे से कोई ट्रेन आनी चाहिए जो कि अपने को मिलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये 12:18 AM हो गया है, रात का हो गया है, ठीक है, ये ध्यान देना ना, रात का टाइम हो गया, सॉरी 12:18, हाँ 12:18 AM हो चुका है। अब 12:18 में प्रॉब्लम क्या है, 12:18 पे 11 मिनट पहले कोई ट्रेन शुरू हुई होगी यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं, यानी कि जो सबसे लास्ट ट्रेन 12 बजे जो शुरू हुई है वो 12 बजे यहाँ शुरू हुई होगी और 12:11 पे आके चली गई होगी, यानी कि 12:13 पे ये निकल चुकी होगी, यानी कि मैं ये ऑप्शन भी कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है। समझ आया? बेसिकली टाइम कैलकुलेट करा और कुछ नहीं करा। अच्छा, क्या दूसरा टाइम ले सकता हूँ? मतलब अपन 11:39 वाला टाइम ले सकते हैं, उस पर दिमाग लगा लेते हैं। 11:39 के लिए थोड़ा अपन जगह बना लेते हैं। 11:39 पे अगर ट्रेन पकड़ना होगा मतलब 11 यहाँ पे 39 पे पहुंचे, यानी कि हम ऐसी ट्रेन ले सकते हैं क्योंकि 10-10 मिनट पहले, यानी कि 11:20 वाली ट्रेन ले लें जो कि 11:37 पे यहाँ पहुंची होगी और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से निकलना शुरू कर की होगी, ठीक। ये अब सही साउंड कर रहा है, निकल सकते हैं। अब 11:39 वाली जो ट्रेन है यहाँ पे मिल गई जो कि अगले 29 मिनट में मेरे को आर पे ले जाएगी, यानी कि 11:39 से 11:49, 59, 12:08 पे मैं पहुंच गया इस जगह पे, ठीक है। 12:08 AM पे पहुंच गया इस जगह पे, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे 12:08 पे मैंने क्या करा, पीछे से एक ट्रेन जो 12 बजे शुरू हुई थी वो 12:11 पे यहाँ आई, जो कि 12:13 से यहाँ पे डिपार्ट कर गई। अब यूजिंग दिस थिंग आई कैन रीच टू दिस पार्ट, यानी कि 12 बजे जो ट्रेन आई 12:11 पे यहाँ पहुंची, 12:11 पे पहुंचने के बाद 12:13 से यहाँ से फिर से डिपार्ट की। अब 12:13 से 15 मिनट यानी कि 12:18, 12:18 से 2 मिनट का हॉल्ट, यानी कि 12:20, 12:20 से यहाँ पे 11 मिनट, यानी कि 1 बजे के पहले पहले मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 11:39। अब मेरे को ये चेक करने का लॉजिक नहीं, 11:35 चेक करने का लॉजिक नहीं। क्यों लॉजिक नहीं? बिकॉज मेरे को लेटेस्ट टाइम पूछा ना, तो मैंने एक लाइन टाइम तो निकाल ही लिया, तो मेरे लिए ये चीज़ आसानी से हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। What is the minimum number of train that are required to provide the service on the AB line consisting both north and south direction? ठीक है, AB पे अगर चले मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन, ठीक है। AB पे अगर ध्यान दो तो हमारी एक ट्रेन जो 6 बजे शुरू हुई थी AB पे, यानी कि इसकी बात हो रही है, जो 6 बजे ट्रेन शुरू हुई थी वो 7 बजे पहुंच गई, यानी कि किसी एक ट्रेन को 1 घंटा लगता है A से B जाने में। तो यानी कि एक ट्रेन शुरू हुई होगी 6 बजे जो कि 7 बजे यहाँ पहुंच गई, एंड 7 बजे रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, तो 6 से 7 वाला, और 6 बजे जो यहाँ से शुरू हुई वो वहाँ पहुँच गई होगी। सिमिलरली 6 के बाद 6:15, 6:30, 6:45 और 7 बजे, वो 7 बजे वाली कौन सी ट्रेन है? वो वही ट्रेन है जो कि B से A पे गई है, यानी कि पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर एक जगह से 4 ट्रेन शुरू हो सकती है, 6 बजे, 6:15 पे, 6:30 पे, 6:45 पे, और दूसरे एंड से भी वही 4 ट्रेन शुरू हो सकती है, यानी कि टोटल कितनी ट्रेन होंगी? 8, ठीक। तो दिस क्वेश्चन वॉज बिट इजी, मतलब अगर एग्जाम वाले फेज में मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो फंसा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 वॉज इजी, क्वेश्चन नंबर 2 भी इन अ वे इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ट्रिकी था, क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस स्टेशन इन द सिटी? अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन की पूछा हुआ है ना। अभी देखो हमने ऐसा निकाल रखा है ना, यहाँ पे हमने ए बी वाले रूट पे 8 ट्रेन निकाल रखा है, मतलब अगर हम इसकी बात करें ए बी वाले पे, यानी कि नॉर्थ और साउथ वाले पे, नॉर्थ और साउथ पे 8 ट्रेन है। 8 का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन 8 है, तो 8 ट्रेन है तो 8 का 2 वाला रूट, यानी कि 16, 8 + 8, ठीक। तो यहाँ पे 16 चाहिए नॉर्थ साउथ को मैनेज करने के लिए। ईस्ट वेस्ट की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? ईस्ट वेस्ट पे बात करें तो आपके पास यहाँ से कितनी ट्रेन है? एक ट्रेन है जो कि 6 बजे शुरू हो रही है,
सॉरी 6 बजे शुरू हो रही है और वो 7:20 पे पहुंच रही है, यानी कि अब यही ट्रेन सेम जो ट्रेन है 7:20 पे वापस होगी, यानी कि कितनी ट्रेन होंगी 6 बजे, 6:10 पे, 6 बजे, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 7 बजे और 7:10 पे, 7:20 पे, यानी कि टोटल अपने पास कितनी ट्रेन आ गई एक रूट पे चलने के लिए 8। फिर से काउंट करा देता हूँ, 6 बजे, 6:10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 7 बजे, 7:10 पे, यानी कि ये 8 ट्रेन। अब 7:20 पे कौन सी ट्रेन है, ये पहली वाली ट्रेन है जो कि एन से फिर शुरू होगी, यानी कि इसी एक रूट पे कितनी ट्रेन आएगी 8, यानी कि 8 इंटू डबल 16, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था तो ईस्ट और वेस्ट पे कितना होना चाहिए था, इट हैज़ टू बी 16 प्लस 16, तो ये इन टोटल कितना बन गया 32, 32 और 16 48, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इट हैज़ टू बी 48। दिस वॉज बिट ट्रिकी, क्वेश्चन नंबर 5 वॉज बिट ट्रिकी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा मैं फेमिलियर हूँ तो मैंने ये फटाफट कैलकुलेट कर लिया, तो आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।